So hello and a very good evening everyone. So আজি আমি জিঅ'মৰ্ফলজি যোনটো নেক্সট টপিক হয় সেইটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ডেট ইজ আৰ্থকুৱেকছ অ'কে চ' আৰ্থকুৱেকছৰ বিষয়ে অকণমান ডিটেইলছত চাওঁ ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ ইন দ্য প্ৰিভিয়াছ ক্লাছেছ আমি আৰ্থকুৱেক কেনেকৈ হয় আমি চেছমিক ৱেভছ কি হয় চেছমিচিটি কি হয় তাৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ দেন উই হেড টকড এবাউট ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ আৰ্থকুৱেক ৱেভছ য'ত আপোনাৰ পি ৱেভছ আৰু এছ ৱেভ থাকে যোনখিনিক আমি একেলগত মিলাই বডি ৱেভছ কওঁ আৰু কিছুমান আছিলে যেনেকুৱা আপোনাৰ ছাৰ্ফেচ ৱেভ হয় চ' তাত দুই প্ৰকাৰ আছিলে এটা লাভ ৱেভ কয় আৰু এটা ৰেলিক ৱেভছ ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত আমি শ্বেডো জোনছখিনি চাইছিলোঁ আজি আমি আৰ্থকুৱেকছ যোনটো হয় সেই টপিকটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ উইল কণ্টিনিউ দিছ অ'কে চ' আৰ্থকুৱেকৰ যদি ডেফিনেশ্যন চাই কি হয় চ' আৰ্থকুৱেক আপুনি ক'ব পাৰি যে শ্বেকিং অৰ ট্ৰেমলিং অফ দ্য আৰ্থ ছাৰ্ফেচ এতিয়া কজড বাই দ্য চিছমিক ৱেভছ চ' চিছমিক ৱেভছ টপিকটো আমি কভাৰ কৰিলোৱে অ'কে আৰ্থকুৱেক ৱেভছো ক'ব পাৰোঁ চ' ইট ইজ দ্য শ্বেকিং অৰ ট্ৰেমলিং অফ দ্য আৰ্থ ছাৰ্ফেচ কজড বাই চিছমিক ৱেভছ that are generated due to sudden movement. The sudden movement মানে কি হয় তাত there is a sudden release of energy, right? In the Earth's crust. আমি চাইছিলোঁ Earth's crustত কি হয় আপোনালোকৰ when there is a sudden movement due to the fault, right? তেতিয়া কি হয় there is a release of energy in the form of earthquake waves. So যোনটো আপোনালোকৰ তাত হাইপোচেণ্টাৰ থাকে তাক আমি যদি চাওঁ ঠিক আছে চ' হাইপোচেণ্টাৰটোৰ পৰা অৰিজিনেট হয় যাক আমি ফ'কাছ বুলিও কওঁ এতিয়া যদি চাই আৰ্থকুৱেক যদি আপোনালোকৰ দুটা জেগাত হ'ব পাৰে মনত ৰাখিব ঠিক আছে এই যোনটো আমি চাইছিলোঁ ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ আমি এটা ব্লক এটা মই ড্ৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এডাল ফল্ট লাইন ৰাইট মানে এই দুটা ব্লকৰ ভিতৰত ব্লক 1 আৰু ব্লক 2 ইহঁতৰ মাজত যোনটো ফল্ট লাইন আছে এইটো কি হ'ব এটা চাইড যদি চাই যোনটো ব্লক 2 হয় যিটোকে এটা আগতে ছিংগল ব্লক আছিলে এতিয়া ভাঙি গ'ল ন চ' এই 2 নামৰ পাৰ্টটো যোনটো আছে এইটো কি হ'ব এইটো চাইডে যাব আৰু 1 আৰু 2 মাজত যোনটো ফ্ৰিকশ্যন হয় ফ'ৰ্চটো কি হ'ব অপজিট চাইডে হ'ব চ' এইটো কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ এই পইণ্টবিলাকত কি হয় আপোনালোকৰ আৰ্থকুৱেকছ জেনেৰেট হয় ডিউ টু ফ্ৰিকশ্যন অ'কে এতিয়া এই বস্তুটো যদি আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টত হয় ঠিক আছে মানে ওপৰত হয় তেতিয়া সেইটো কি কয় শ্বেল' ফ'কাছ আৰ্থকুৱেক বুলি কয় সেইকাৰণে আপুনি শুনে নহয় কেতিয়াবা যে আৰ্থকুৱেক ইমান কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত হৈছে ঠিক আছে তাৰ এপিচেণ্টাৰ ইয়াত আছিলে হাইপোচেণ্টাৰ ইয়াত আছে কিন্তু যেতিয়া আৰ্থকুৱেক যেতিয়া ওপৰত হয় ক্ৰাষ্টত হয় তেতিয়া তাক শ্বেল' বুলি কয় ঠিক আছে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ আপাৰ মেণ্টেলত হয় আপাৰ মেণ্টেল মানে কি হয় আপুনি যেতিয়া তললৈ গৈ থাকিব আপুনি ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ লেয়াৰ্ছ অফ আৰ্থ আমি পঢ়িছিলোঁ তাত আপোনাৰ একদম ওপৰত কি আছিলে ক্ৰাষ্ট আছিলে ক্ৰাষ্টৰ পিছত আপোনালোকৰ আছিলে ক্ৰাষ্টৰ দুটা ভাগ আছিলে আপোনাক কৈছিলোঁ মই লিথোস্ফিয়াৰ আৰু মানে অচিনিক ক্ৰাষ্ট বা আপুনি এনেই ক'ব পাৰে কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট আৰু মানে লিথোস্ফিয়াৰ বুলি কয় মই আপোনালোকক ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ মই হয়তো পাহৰি যাব পাৰে ঠিকে আছে যদি মনত আছেতো ভালেই মই হ'লেও আঁকি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ছাপ'জ এই পাৰ্টটোক কি বুলি কওঁ আমি ক্ৰাষ্ট বুলি কওঁ ৰাইট চ' ক্ৰাষ্টটো আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে যে কণ্টিনেণ্টেল আৰু অচিনিক ক্ৰাষ্ট আছিলে ইয়াত অ'কে আৰু এই ক্ৰাষ্টটোৰ পিছত এটা লেয়াৰ আছিলে সৰু যাক এষ্টেনোস্ফিয়াৰ কয় তাৰপিছত আপোনাৰ মেণ্টেল যোনটো পাৰ্ট সেইটো অতিকৈ ডাঙৰ হয় ৰাইট মেণ্টেলটো দুটা পাৰ্ট আছিলে আপোনালোকৰ এটা হ'ল আপোনালোকৰ আপাৰ মেণ্টেল এটা হ'ল লোৱাৰ মেণ্টেল ঠিক আছে এতিয়া আপাৰ মেণ্টেলৰলৈকে যদি চাই এই পাৰ্টটোক লিথোস্ফিয়াৰ কয় ঠিক আছে মানে ক্ৰাষ্টৰ পৰা আপাৰ মেণ্টেলৰলৈকে যোনটো হয় দিছ ইজ ন'ন এজ লিথোস্ফিয়াৰ এতিয়া যদি আৰ্থকুৱেকটো আপুনি ধৰি লওক ক্ৰাষ্টত হয় ইয়াত হৈছে তেতিয়া আপোনাক তাক কি বুলি কয় তেনেকুৱা আৰ্থকুৱেকক কয় শ্বেল' ফ'কাছ আৰ্থকুৱেক আৰু যদি আপোনালোকৰ আপাৰ মেণ্টেলত ভিতৰত হয় তলত তেতিয়া তাক কি কয় তাক কয় ইণ্টাৰমিডিয়েট অৰ ডিপ ফ'কাছ আৰ্থকুৱেকছ বুলি কয় ঠিক আছে এতিয়া আৰ্থকুৱেক আমি ডিটেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে এটা ডিভাইচ ইউজ কৰোঁ যাক কয় চিছমোমিটাৰ আৰু চিছমোমিটাৰ ইজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ডেট ইজ ইউজ টু ডিটেক্ট এণ্ড ৰেকৰ্ড আৰ্থকুৱেকছ আৰু তাক চিছমোমিটাৰো কয় চিছমোগ্ৰাফ বুলিও কয় ঠিক আছে চ' আৰ্থকুৱেকৰ বিষয়ে আমি এইটো চালোঁ চ' মনত ৰাখিব আৰ্থকুৱেকৰ ক্ৰাষ্টতে নহয় কিছুমান আৰ্থকুৱেক কি হয় ডিপ ফ'কাছ আৰ্থকুৱেক যেনেকুৱা থাকে ঠিক আছে সেইবিলাক কি হয় আপোনাৰ আপাৰ মেণ্টেলতো কিছুমান আৰ্থকুৱেক হ'ব পাৰে ঠিক আছে এইটো আমি অলৰেডি পঢ়িছিলোঁ এই শ্লাইডখন মই তাত ফল্টটো আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ফল্ট লাইন হয় এডাল চ' ইয়াৰ এটা পইণ্ট যদি আমি ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ কি হ'ব যদি আপোনাৰ বডি ৱেভছ হয় তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় বডি ৱেভছৰ দুই প্ৰকাৰ ৱেভ ওলাই এটা কয় বডি ৱেভ যোনটো আপোনাৰ চব গোটেইখিনি ডাইৰেকশ্যনতে কি হয় স্প্ৰেড হয় আৰু এটা ছাৰ্ফেচ ৱেভ হয় যোনটো অকল কি হয় ছাৰ্ফেচৰ পিনে যায় ৰাইট চ' ছাৰ্ফেচৰ পিনে আপোনালোকৰ বডি ৱেভৰ আৰু এটা ৱেভ যায় আপোনালোকে জানে পি ৱেভ যোনটো ডাইৰেক্টলি ট্ৰেভেল কৰে আৰু এছ ৱেভছটো এনেকৈ চাইন ৱেভ বা ৰিপলছৰ ফৰ্মত ট্ৰেভেল কৰে ঠিক আছে চ' আগৰ ভিডিঅ'টো আপুনি চাই ল'ব ইফ ইউ ফৰগট ডেট থিং চাওক এতিয়া লাইন কানেক্টিং অল দ্য পইণ্টছ অন দ্য ছাৰ্ফেচ ৱেৰ দ্য ইণ্টেনচিটি ইজ ছেইম মনত ৰাখিব যদি আপুনি ধৰক এতিয়া ছাপ'জ মই এটা ধৰি লৈছোঁ এই জেগাটোত অ'কে যদি চাই আপুনি এই জেগাটোত কি হয় এভৰি পইণ্ট আপোনাৰ কি হ'ব আৰ্থকুৱেকৰ ইণ্টেনচিটি ছেইম হ'ব ৰাইট চ' এনেকুৱা লাইনডালক কি বুলি কয় এই লাইনডাল যোনডাল যোনে আপোনাক ফ'কাছ আৰু এপিচেণ্টাৰ জইন কৰিছে ঠিক আছে চ' এই লাইনডালক কি বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে আইচ'চেচমিক লাইন ক'ব পাৰে ঠিক আছে চ' সেইটোৱে কৈছে যে লাইন কানেক্টিং অল দ্য পইণ্টছ অন দ্য ছাৰ্ফেচ ৱেৰ দ্য ইণ্টেনচিটি ছেইম কাৰণ এই পইণ্টটোত কি হ'ব এভৰি পইণ্টত কি হ'ব আপোনালোকৰ যোনটো আৰ্থকুৱেকৰ মেগনিটিউড হয় সেইটো কি হয় ছেইম হয় ইন কেছ অফ পি ৱেভছ স্পেচিয়েলি
বাকী ৱেভছবিলাকৰ যেনেকৈ আপোনালোকৰ কিছুমান বডি ৱেভ ছাৰ্ফেচ ৱেভ থাকে, সেইবিলাক কি হয় এজ ইট গ'জ এহেড, মানে যেতিয়া ওপৰলৈ গৈ থাকে বা বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত আপোনাৰ যোন ডাইৰেকশ্যনত অৰিয়েণ্ট হৈছে ছাৰ্ফেচ ৱেভবিলাক, সেইটো গৈ পেলাই কি হয় এটা টাইমত তাৰ যিহেতুকে এইটো এনেকুৱা ফৰ্মত যায়, ৱেভ ফৰ্মত যায়, লাহে লাহে কি হয় ৱেভটো সৰু হৈ যায়, লাহে 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 ছাৰ্ফেচলৈ আহোঁতে কি হয় তাৰ এম্প্লিটিউডটো সৰু হৈ গৈ এটা সময়ত কি নোহোৱা হৈ যায়। ঠিক আছে। চ' আইচ'চিস্মিক লাইন এনেকৈও ক'ব পাৰে, বা আপুনি ক'ব পাৰে ছাপ'জ আপুনি এটা এৰিয়াত ছাৰ্ফেচত যদি আছে, এনেকৈও আপুনি চাব পাৰে বস্তুটো। যদি আপুনি ছাৰ্ফেচত আছে, ওপৰত আছে, চ' ইয়াত যদি আপুনি চাই এট এভৰি পইণ্ট ইয়াৰ পৰা যোনটো অৰিজিনেট হ'ব, বেলেগ বেলেগ লাইন অৰিজিনেট নহ'ব জানো আপোনাৰ? আৰ্থকুৱেকটো কি হ'ব, প্ৰথমতে এই জেগাটোত কি হ'ব, বেছি হ'ব, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা লাহে 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 যদি চাই ইয়াত মেগনিটিউডটো বেছি থাকিব, চ' লাহে লাহে কি হ'ব আপোনাৰ এনে কমি 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 গৈ থাকিব, ৰাইট? চ' এই পইণ্টবিলাক, ৰাইট, য'ত আৰ্থকুৱেক কি হয় সমান হয়, যেনেকৈ এইটো ডাইৰেকশ্যনটো তেনেকৈ অৰিজিনেট হ'ব, ৰাইট? এতিয়া যদি চাই এই পইণ্টটোত আৰু এই পইণ্টটোত ছাপ'জ, ঠিক আছে, ৱেভটোৰ এই পইণ্টটোত ইয়াত কি হয় আপোনাৰ যদি মেগনিটিউড ছেইম হয়, তেতিয়াহ'লে এই পইণ্টছবিলাককো যদি আমি কানেক্ট কৰোঁ, আমি কি পাম, উইল গেট এ আইচ'চিস্মিক লাইন। অ'কে, নেক্সট এতিয়া দুটা টাৰ্ম আছে আপোনালোকৰ, ফ'ৰশ্বক এণ্ড আফটাৰশ্বকছ। চ' ফ'ৰশ্বক মানে কি হয় আপোনালোকৰ, ইটছ এ মাইল্ড আৰ্থকুৱেক প্ৰিডিক্টিং দ্য ভাইলেণ্ট শ্বেকিং মুভমেণ্ট অফ এন আৰ্থকুৱেক। চ' ষ্টাৰ্টিঙত যেতিয়া পি ৱেভবিলাক আপোনালোকে জানে যে পি ৱেভবিলাক আটাইতকৈ ফাষ্টেষ্ট হয়। চ' যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম যোনটো শ্বেকিং হয় আৰ্থৰ, ঠিক আছে, চ' ডেট শ্বেকিং অফ দ্য আৰ্থ ইজ ন'ন এজ দ্য फोरशॉक। ओके, सो याद रहेगा आप लोग को कि वायलेंट शेकिंग मूवमेंट जो होता है इनिशियली, ठीक है, दिस इज फोरशॉक। एंड आफ्टर शॉक क्या होता है, कुछ देर बाद कुछ जैसे एक मेजर अर्थक्वेक गया, उसके बाद क्या होता है छोटे छोटे कुछ शैलो फोकस अर्थक्वेक्स भी आते रहते हैं, ठीक है। सो याद रखिए उनको आफ्टर शॉक बोलते हैं। इफ़ यू रिमेंबर 2000 आई थिंक 22 में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, उसके बाद आपका आफ्टर शॉक्स आते रहे, ठीक है। सो स्टार्टिंग में जो आया था, ठीक है, वो अर्थक्वेक आप स्टार्टिंग में जो शॉक आया था दैट इज नोन एज अ फोर शॉक। सो फोर शॉक एक ही बार आएगा आपका, उसके बाद बहुत सारे आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। जापान जैसी जगह में क्या होता है, एक बड़ा अर्थक्वेक आने के बाद छोटे छोटे कुछ अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, ठीक है। सो आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स और 10 मिनट्स ऐसे आते रहते हैं, सो दैट दोज आर नोन एज आफ्टर शॉक्स। ओके, तो आफ्टर शॉक्स जो होते हैं ये यूजुअली आफ्टर ए मेजर अर्थक्वेक आता है, ठीक है। कोई मेजर या मॉडरेट अर्थक्वेक अगर आया, ठीक है, जैसे 6 या 6 और 6 से अगर एबोव है रिक्टर स्केल में उसका मैग्नीट्यूड, तो इसके बाद क्या आते हैं कुछ माइनर आफ्टर शॉक्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द अर्थक्वेक स्वार्म्स। सो अर्थक्वेक स्वार्म्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आफ्टर शॉक्स जैसे 2 3 आए 4 आए, ठीक है, आफ्टर मेजर अर्थक्वेक, लेकिन अगर स्मॉल अर्थक्वेक्स आते रहेंगे इन ए रीजन, ठीक है, फॉर मंथ्स आप बोल सकते हो विदाउट ए मेजर अर्थक्वेक, जैसे एक बड़ा अर्थक्वेक आ गया, उसके बाद अगर 2 3 अर्थक्वेक आते हैं दैट इज आफ्टर आफ्टर शॉक, लेकिन उसके बाद अगर आते ही रहते हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए छोटे छोटे जो है आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे, और उसका टाइम ड्यूरेशन जो है, जो अब अगर देखेंगे, सो ये अगर 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लाइक फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है, सो यू कैन कॉल दोज एज दो सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स एज अर्थक्वेक स्वार्म्स बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ अर्थक्वेक्स एसोसिएटेड विथ वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑफन ओकरिंग स्वार्म्स। तो ये याद रखिए, जैसे अर्थक्वेक बहुत से रीजन से हो सकते हैं, सिस्मिक प्लेट या प्लेट सब्सिडेंस वगैरह हो सकता है, या मैंने जो दिखाया था आपको जैसे आपका फॉल्ट लाइन आ सकता है, ठीक है, वैसे हो सकता है। लेकिन जो अर्थक्वेक वॉल्केनिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है, वो अर्थक्वेक यूजुअली स्वार्म्स में आते हैं। फिर earthquake swarms can serve as markers for location of the flowing magma throughout the volcanoes. So earthquake swarms को साइंटिस्ट लोग अगर देखेंगे, जियोलॉजिस्ट लोग, दे यूज दोज एज मार्कर्स फॉर लोकेटिंग द फ्लोइंग ऑफ मैग्मा। तो आपको earthquake swarm कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है उससे पता चलता है कि उसके नीचे मैग्मा है, ठीक है, ऐसे हमको पता चलेगा। जैसे असम में आया था जब 2022 में earthquake, उसके बाद स्वार्म्स भी आए थे, बहुत दिनों तक था, ठीक है, छोटे छोटे earthquakes आते रहे, उसे लोगों को मतलब ऐसा लगने लगा था कि देयर इज अ सोर्स ऑफ मैग्मा बिलो असम, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा अर्थक्वेक स्वार्म्स आ रहा था। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, मैंने कुछ तो बोला ही है, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी अभी हमने बोला था, कुछ और रीजंस है, जैसे फॉल्ट जोन हमने देखा था, जैसे दो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दो ब्लॉक्स जो था स्लाइड हो गया, फ्रिक्शंस हुआ उनके बीच, राइट, सो इट क्रिएट्स द फॉल्ट जोन्स, और ये फॉल्ट लाइंस में ही अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। तीसरा क्या हो सकता है आपका, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको पता है। सो प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है, व्हेन द लाइक प्लेट्स दे, एक अगर हैवी प्लेट है और एक मान लीजिए एक लाइटर प्लेट है, तो यूजुअली क्या होता है जब दोनों आसपास आते हैं तो हैवियर प्लेट क्या होता है, इट सबसाइड्स, नीचे चला जाता है, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा, सो ये प्लेट्स जब क्रस्ट में क्या होता है सबसाइड करते हैं, जैसे ये ओशनिक प्लेट है और मान लीजिए कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ओशनिक प्लेट क्या होगा, इट इज मेड अप ऑफ
SiMa, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। और जो ओशनिक प्लेट है इट इज मेड अप ऑफ Cl, ठीक है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या होगा, सीमा वाला प्लेट हेवियर है तो ये नीचे हेवियर प्लेट सबसाइड हो जाएगा, ऐसे होने से भी क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। फिर मान लीजिए फॉल्ट जोन मतलब क्या है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, देयर इज ए ब्लॉक राइट, इसमें अगर कुछ क्रैक आ गया तो ये अगर नीचे चला गया ये वाला पार्ट और ये वाला क्या रहेगा, ये तो इधर ही रहेगा, तो क्या होगा इन दोनों के बीच, ये जैसे ये एक ब्लॉक मान लीजिए दो टुकड़ा हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है नीचे धसक जाएगा, ठीक है, सब्सिडेंस होगा, इसलिए क्या होगा, ये नीचे जाने की वजह से यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या होगा, देयर विल बी फ्रिक्शन, मेजर फ्रिक्शंस, सो इसके वजह से भी अर्थक्वेक्स आते हैं। वॉल्केनिज्म तो आपको पता ही है, जैसे अर्थ के नीचे क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था, मैग्मा होता है, तो ये मैग्मा क्या होगा, एस्टेनोस्फीयर में ओरिजिनेट, जो आपके मैग्मा रिजर्वॉयर्स है इसमें जमा होगा, और उसको छोड़ के भी कुछ प्लूटोनिक जो रॉक्स हैं उनको भी क्या करते हैं, मैग्मा स्ट्राइक करते रहते हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, देयर में भी सब्सिडेंस, और जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी अर्थक्वेक्स। और कुछ रीजंस है, जैसे ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स भी होते हैं, जैसे लोग अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट या माइनिंग वगैरह करते हैं, तो इसकी वजह से भी कभी कभी अर्थक्वेक्स आते हैं, राइट। फिर कुछ फॉल्ट जोन्स देखते हैं कैसे होता है फॉल्ट जोन। तो अभी देखिए, द इंटरमीडिएट कॉज ऑफ द मोस्ट शैलो अर्थक्वेक्स, जो क्रस्ट में होता है शैलो अर्थक्वेक्स, ये किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ द सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस अलोंग ए फॉल्ट रैप्चर, ठीक है, रैप्चर मतलब क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट। Sudden slipping of the rock formations along the fault rupture in the Earth's crust happens due to the constant change in volume and density of the rocks due to intense temperature and pressure in the Earth's interior. फिर हम डायग्राम से पूरा समझ लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, द लॉन्गर द लेंथ द वाइडर एंड द विड्थ ऑफ द फॉल्टेड एरिया, फिर द लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक विल बी। ओके, द लॉन्गेस्ट अगर अर्थक्वेक देखा जाए रप्चर्स अलोंग ट्रस्ट फॉल्स, दैट इज कन्वर्जन बाउंड्री में होता है, अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर्स का, बड़ा इतना लंबा होता है। जो आपके अर्थक्वेक का रप्चर्स होता है या क्रैक्स होते हैं, अगर आप देखेंगे यूजुअली वो कन्वर्जन बाउंड्री में मिलता है, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट अर्थक्वेक रप्चर्स होता है ऑन, ये देखिए फॉल्ट दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, ट्रस्ट फॉल्ट एक होता है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ठीक है। जो स्ट्राइक फॉल्ट होता है यूजुअली दैट इज ड्यू टू द कन्वर्जन बाउंड्री, और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो होता है दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ठीक है। इनको सेम नाम, मतलब आप कन्वर्जन बाउंड्री फॉल्ट बोल सकते हो, या ट्रस्ट फॉल्ट बोल सकते हो, या स्ट्राइप्स ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोल सकते हो, और यू कैन कॉल इट एज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ठीक है। दे अबाउट हाफ ऑफ 1/3 एज लॉन्ग एज द लेंथ ऑफ द ट्रस्ट। सो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फॉल्ट रप्चर्स along द नॉर्मल फॉल्ट डाइवर्जन बाउंड्री आर शॉर्टर। सो देखिए, जो आपके बाउंड्रीज होते हैं ना, ठीक है, प्लेट बाउंड्री मतलब, सो कन्वर्जेंस वाले टॉपिक पे हम पढ़ेंगे प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। सो बाउंड्री जो होता है वो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कन्वर्जन बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक होता है डाइवर्जन बाउंड्री, ठीक है, एक होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और एक होता है डाइवर्जन बाउंड्री, ठीक है। सो सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए तो कन्वर्जन बाउंड्री का क्या होता है, जैसे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये लावा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो ये दोनों अगर इस तरफ आएगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, देन ये जो, इसकी वजह से क्या होगा, दे विल ऑब्वियसली, जो भी हैवी प्लेट होगा वो एक तो नीचे चला जाएगा, लाइटर प्लेट उसके ऊपर उठ जाएगा, दैट बाउंड्री विल बी कॉल्ड एज कन्वर्जन बाउंड्री। डाइवर्जन बाउंड्री उसका उल्टा होता है, क्या होता है, मान लीजिए दो ऐसे प्लेट्स हैं, एक प्लेट अगर इस तरफ चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक क्या होगा, गैप आ जाएगा, राइट। सो दिस रप्चर या क्रैक, इससे भी क्या होगा, देयर विल बी सम लाइक वोल्केनो या कुछ भी हो सकता है, या मान सकते हो आप ये दो ब्लॉक्स बन गए, ठीक है, जैसे ग्रैबन एंड हॉर्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप लगा सकते हो। सो यहाँ पे भी जो फॉल्ट बनेगा, ठीक है, क्रैक बनेगा, दोनों लैंड ऐसे ऐसे जाने की वजह से क्या होगा, एक बीच में क्रैक आ जाएगा, राइट। दो लैंड मासेस आप मान लो बीच से अगर ऐसे फट गया तो क्या होगा, देयर पे डाइवर्जन बाउंड्री। और जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होता है वो कैसा होता है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है, एक ब्लॉक जैसे यहाँ पे है, राइट, और एक ब्लॉक ऐसे है, तो अभी वो ऐसे भी नहीं है, राइट, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, लेकिन क्या है, एक इस तरफ मूव कर रहा है, और एक हो सकता है इस तरफ मूव करे, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉक ऐसे है, अगर ये ब्लॉक वन इस तरफ मूव करे, ब्लॉक टू ऐसे, तो अलोंग द साइड्स वो क्या होता है, पहले क्या था, डायरेक्ट फेस टू फेस था, अभी अलोंग द साइड्स उनका अगर घर्षण होता है, मतलब फ्रिक्शन होगा, देन दैट विल क्रिएट अ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ठीक है। सो कन्वर्जन बाउंड्री वजह से जो फॉल्ट बनता है उसको ट्रस्ट फॉल्ट भी बोलते हैं,
ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की वजह से जो फॉल्ट बनेगा दैट इज नोन एज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, और जो डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से जो फॉल्ट बनेगा दैट इज नोन एज ए नॉर्मल फॉल्ट। ठीक है, अभी तीनों फॉल्ट में एक चीज आप देखिए, जो आपके कन्वर्जन बाउंड्री वाले फॉल्ट होते हैं ना, ये फॉल्ट बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स के होते हैं। और अगर आप स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का देखेंगे, सो ये आपके जो ये जो 1000 किलोमीटर का 1/3 होगा। मान लीजिए कन्वर्जन बाउंड्री का अगर जो आपका फॉल्ट का लेंथ है, ठीक है, जो क्रैक का लेंथ है अगर वो x है, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का जो फॉल्ट का मतलब लेंथ होगा दैट विल बी x/3, मतलब इसका 1/3 टाइम्स कम होता है। ठीक है, और डाइवर्जेंट बाउंड्री का अगर फॉल्ट देखेंगे तो ये और भी छोटा होगा। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो द अर्थक्वेक होता है, दिस इज ड्यू टू द कन्वर्जेंट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, सो क्योंकि इसमें फॉल्ट बहुत बड़ा होता है, राइट, इसलिए। आई होप यू अंडरस्टूड। सो इसमें भी आप देख सकते हो, फर्स्ट वाला जो केस है प्री स्ट्रेस स्टेट में था वो, फिर स्ट्रेस आ गया। ठीक है, सो स्ट्रेस किस लिए, जैसे आपका ज़मीन ऐसे हिलने लगा, तो व्हाट विल हैपन, सो वन साइड इफ यू सी, एक इस तरफ मतलब घस गया, इस तरफ घस गया। ठीक है, इससे क्या होगा, एक साइड इस तरफ जा रहा है, एक साइड इस तरफ जा रहा है, फिर ये टूट के ऐसे, ये फॉल्ट जो है ना, ये जो पार्ट था ऊपर वाला, ये ऐसे पोस्ट रप्चर्ड अनस्ट्रेस्ड लॉक हो गया, ये रप्चर्ड मतलब सरफेस हो गया, दोनों अलग हो गया, राइट। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इसको अगर हम लाइन में ऐसे ड्रॉ करेंगे, दिस लाइन इज नोन एज द फॉल्ट लाइन और फॉल्ट प्लेन। ठीक है, सो याद रखिए मैंने जो बोला है, कन्वर्जन बाउंड्री में क्या होता है, कन्वर्जन बाउंड्री में जो फॉल्ट होगा उसको ट्रस्ट फॉल्ट बोलते हैं, एंड ट्रस्ट फॉल्ट सबसे लंबा होता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में जो फॉल्ट बनेगा दिस इज नोन एज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, इसमें कंपेयर टू कन्वर्जन बाउंड्री फॉल्ट उसका लेंथ x/3 होगा। ठीक है, मतलब 1/3 होगा। और डाइवर्जेंट बाउंड्री में जो फॉल्ट होता है दिस इज नोन एज नॉर्मल फॉल्ट, और इसमें क्या होता है, जो फॉल्ट लाइन है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, स्लिपिंग ऑफ द लैंड अलोंग द फॉल्ट लाइन। ठीक है, अलोंग कुछ भी बाउंड्री हो सकता है, डाइवर्जेंट हो, कन्वर्जेंट हो या ट्रांसफॉर्म हो। ठीक है, दिस कॉजेस अर्थक्वेक्स। अभी रिवर्स फॉल्स जो है दैट इज द कन्वर्जन बाउंड्री आर एसोसिएटेड विद द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक्स। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, जो कन्वर्जन बाउंड्री के फॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे लंबे होते हैं, राइट। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स का लंबा लंबा फॉल्ट होता है, इससे ही सारे अर्थक्वेक्स और मेगा ट्रस्ट अर्थक्वेक्स वगैरह आता है। ठीक है सर, जिसका मैग्नीट्यूड आपका 8 से ज़्यादा होता है। याद रखिए, जो बड़े बड़े अर्थक्वेक्स अब तक आए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो किस लिए हुआ है, ड्यू टू द कन्वर्जन बाउंड्री फॉल्ट। ओके, फिर मेगा ट्रस्ट अर्थक्वेक्स अगर हम देखेंगे, यूजुअली दे ओकर एट द सबडक्शन जोन वेयर वन प्लेट इज फोर्स्ड अंडरनीथ अनदर। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जो हेवियर मतलब ओशनिक प्लेट है वो क्या करेगा, एक मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर चला जाता है। ठीक है, इट सबसाइड्स अंडर दिस। सो जो यहाँ पे बाउंड्री बनेगा दिस इज नोन एज द कन्वर्जन बाउंड्री, और यू कैन से दिस इज द एक पर्टिकुलर नाम है इसका, मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ट्रस्ट फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसे जब ट्रस्ट फॉल्ट बना ड्यू टू द कन्वर्जन बाउंड्री हियर, सो दिस विल क्रिएट अ अर्थक्वेक ऑफ ए हाई मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो 2004 में इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आया था, ठीक है, जिसकी वजह से सुनामी भी जनरेट हुआ था, दिस वाज ड्यू टू द दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन बाउंड्री फॉल्ट लाइन। ओके, फिर दूसरा जो फॉल्ट लाइन है जो आपके डाइवर्जेंस की वजह से होता है, दिस इज नोन एज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, और इसकी वजह से अगर देखेंगे तो इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मेजर अर्थक्वेक्स अप टू 8। ठीक है, अप टू 8 मतलब 8 के नीचे ही होगा यूजुअली, बट जो आपकी कन्वर्जन बाउंड्री फॉल्ट है वो उसमें क्या होता है, जो ट्रस्ट फॉल्ट होंगे कन्वर्जन बाउंड्री में जो फॉल्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रस्ट फॉल्ट, THRUST, ट्रस्ट फॉल्ट। और इसकी वजह से जो आपका अर्थक्वेक होगा दैट विल बी वेरी लार्ज इन साइज, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 8 से ज़्यादा होगा। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है ड्यू टू द डाइवर्जन बाउंड्री, और ऐसे अगर पर्टिकुलर फॉल्ट्स में देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड अप टू 8 होता है। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं होता है। एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है आपका, वो पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की वजह से हो रहा है। वाई, बिकॉज दे आर मूविंग हॉरिजॉन्टली रिलेटिव टू ईच अदर एंड दिस आर कॉजिंग फॉल्ट लाइन्स। ठीक है, तो जैसे आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ऐसे मान लीजिए, और यहाँ पे जैसे आपका पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, सो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड द पैसिफिक प्लेट, ये क्या कर रहे हैं, दे आर लाइक गोइंग अवे, राइट। पैसिफिक प्लेट तो ये एक तरफ जा रहा है और ये जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, एक डाइवर्जेंट बाउंड्री
यहाँ पे यस डाइवर्जेंट बाउंड्री बन गया, जिसकी वजह से जो फॉल्ट क्रिएट हुआ है इसको बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, और इसके वजह से क्या है, यहाँ पे भी अर्थक्वेक्स आते हैं पैसिफिक रीजन में, ठीक है। फिर अर्थक्वेक्स एसोसिएटेड विद नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है, आर जनरली लेस देन 7। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला अर्थक्वेक किसके लिए आता है, ड्यू टू द कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रस्ट फॉल्ट। उससे कम मैग्नीट्यूड का अगर देखें तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्री का स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के लिए आता है, और सबसे कम अगर देखेंगे तो वो नॉर्मल फॉल्ट होता है, ठीक है। वो डाइवर्जेंट बाउंड्री हो सकता है या यू कैन से ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी हो सकता है, ठीक है, बोथ द केसेस। उसमें नॉर्मल फॉल्ट अगर होगा तो उसका जनरली जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 7 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे आसपास जो छोटे मोटे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, दीज आर ड्यू टू द डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉल्ट्स, ओके। अगर ये कन्वर्जेंट बाउंड्री फॉल्ट वाला है सो यूजुअली हिमालयन रीजन में होता है बहुत, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट की मतलब उस यूरेशियन प्लेट क्या है आपका, लाइटर है तो उसके नीचे जा रहा है इंडियन प्लेट, राइट। इसकी वजह से क्या है आपका ये जो पार्ट है, क्योंकि इंडियन प्लेट हैवी है इसलिए जाएगा, यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हिमालय फॉर्म हो रहे हैं, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो जनरेटिंग सम हेवी earthquakes, ठीक है, बिकॉज दीज आर वहाँ पे कुछ ट्रस्ट फॉल्ट है। सो आपको पता है डाउकी फॉल्ट आपने सुना है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रस्ट फॉल्ट, ठीक है, या कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से जो ट्रस्ट फॉल्ट है वही उसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो अबाउट डाउकी, राइट, डाउकी फॉल्ट। नेक्स्ट आपने हमने क्या देखा यहाँ पे, फॉल्ट जोन्स देखा, प्लेट टेक्टोनिक्स रीजन्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था ना कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक्स इसलिए होता है, फॉल्ट जोन हमने देखा, प्लेट टेक्टोनिक्स देखा, अभी हम देखेंगे वॉल्केनिक एक्टिविटी से कैसे होता है। सो वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी अर्थक्वेक्स होते हैं, राइट, बट द अर्थक्वेक्स ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन जो होता है आर जनरली लेस सीवियर एंड मोर लिमिटेड इन एक्सटेंट देन दोज कॉज्ड बाय फ्रैक्चरिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के फ्रैक्चर या ब्रेक होने की वजह से जो अर्थक्वेक होता है दे आर यूजुअली मोर इंटेंस, बट वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो अर्थक्वेक जनरेट होगा दे आर लेस सीवियर, इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का नहीं होता है, ठीक है, और उसका एरिया भी लिमिटेड है आसपास का। So earthquakes in the volcanic regions are caused by the consequent release of an elastic strain energy caused by tectonic faults and movement of magma in volcanoes. So जैसे आपके पता है आपको कि जैसे आपका एक पर्टिकुलर ये मान लीजिए दिस इज ए वॉल्केनो। सो जैसे आपका एस्टेनोस्फीयर से धीरे धीरे जो आपके वहाँ पे मैग्मा आप बोल सकते हो बाथ है, ठीक है, BATH बाथ बोलते हैं, मैग्मा बाथ। तो वो क्या होता है धीरे धीरे ऊपर जैसे जाते हैं, सो वो मतलब ऐसे जब उठेगा ना तब क्या होता है मतलब इट ऑल्सो कॉजेज दिस मूवमेंट ऑफ मैग्मा ऑल्सो कॉजेज फॉर आई मीन अर्थक्वेक्स, ठीक है। और यहाँ पे जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स भी होगा मैग्मा के आसपास, तब भी क्या होगा इस एरिया में क्या होगा, वॉल्केनिक एक्टिविटी ही बोल सकते हो आप, क्योंकि वॉल्केनो से ये प्लेट्स आसपास मतलब रॉक्स जो है प्लूटोनिक रॉक ये मतलब रिलेटेड है, इसमें भी मूवमेंट होगा तब भी क्या हो सकता है, देयर कैन बी एन अर्थक्वेक। सो एग्जांपल में आप बोल सकते हो जैसे आपका 1980 में सेंट हेलेना में क्या आया था, एक बड़ा सा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, देयर वर सिवियर अर्थक्वेक्स नियर बाय, ओके। और अगर देखोगे आप थोड़ा थोड़ा एक्चुअली वॉल्केनिक इरप्शंस होने से पहले थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा था, वहाँ पे शेकिंग हो रहा था, तो लोगों को तो इतना पता नहीं था क्यों शेक हो रहा है, वो लोग ने सोचा होगा नॉर्मल अर्थक्वेक है, बट दिस अर्थक्वेक इसलिए हो रहा था क्योंकि मैग्मा एक्चुअली ऊपर मूव कर रहा था, वो इरप्ट होने वाला है, ठीक है। अगर लोगों को पहले पता चलता है ऐसे कुछ होने वाला है तो ऑब्वियसली सेंट हेलेना में इतना बड़ा ट्रेजेडी नहीं होता, राइट। So there is a clear correspondence between the geographic distribution of volcanoes and earthquakes. So volcanoes and earthquakes usually क्या होता है, they are related. Okay, volcano की वजह से earthquake आ सकता है, earthquake की वजह से भी volcanoes आ सकते हैं, right? सो अगर हम देखेंगे यूजुअली वॉल्केनिक और मतलब जो रीजन्स है वर्ल्ड में उसमें अगर देखेंगे जो अर्थक्वेक्स है ज़्यादातर वो कहाँ पे होता है और वॉल्केनोज कहाँ पे मिलते हैं, सर्कम पैसिफिक बेल्ट में अलोंग द ओशनिक रीजस, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए वॉल्केनिक वेंट्स हाउएवर आर जनरली several hundred kilometers from the epicenters of most of the shallow earthquakes and many earthquake sources occur nowhere near active volcanoes, ठीक है। सो कभी ऐसे हो सकता है कि अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो एक साथ आ जाए, बट दैट विल बी वेरी कैटास्ट्रॉफिक। बट यूजुअली क्या होता है छोटे मोटे अगर जो वॉल्केनोज आई मीन अर्थक्वेक्स है वो अगर आते हैं दैट अर्थक्वेक स्वार्म्स वगैरह आता है, दैट मे इंडिकेट दैट माइट इंडिकेट दैट देयर इज ए मैग्मा बाथ बिलो, ठीक है। सो
वो जो वॉल्केनोज होते हैं, यूजुअली वॉल्केनिक वेंट्स होते हैं, आपको पता चलेगा कि अंडमान में जैसे हैं, तो वहाँ पे यूजुअली क्या होता है, वो अर्थक्वेक जोन में नहीं आ रहे हैं, राइट, बट वो एरिया का अर्थक्वेक जोन में आता है, देन इट वुड हैव बीन कैटास्ट्रोफिक, बिकॉज अर्थक्वेक की वजह से मैग्मा को मतलब और ज़्यादा वो फास्ट हो जाता है प्रोसेस। वाई? बिकॉज जब अर्थक्वेक होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, मैग्मा को जगह मिलता है ऊपर उठने के लिए, राइट, पुश करते रहते हैं ना नीचे से, सो उसके लिए वॉल्केनिज्म ज़्यादा हो सकता है। बट यूजुअली क्या होता है, हमारे इंडियन ओशन रीजन में अगर देखेंगे आप, जितने भी अर्थक्वेक्स हैं, एक्टिव जोन्स अगर देखेंगे, जैसे आपका नारकोंडम है, ठीक है, फिर बेनिस आइलैंड है जो अभी मतलब एक्टिव नहीं है, डोरमेंट है, फिर भी कभी भी अर्थक्वेक को आप मतलब एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कोई कोई डोरमेंट है या कभी हो सकता है उसके नीचे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रहे हो, ठीक है। So anyways, these are usually located away from the earthquake zones, major shallow जो earthquakes होते हैं उनके जोन से usually this Indian Ocean के जो अभी at present volcanoes है वो usually दूर है, इसलिए ज़्यादा इतना एक्टिविटी नहीं दिखाई देता है, ठीक है, यूजुअली। बट अब पैसिफिक में देखेंगे तो वो अर्थक्वेक जोन में आता है, ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे वॉल्केनिज्म बहुत ज़्यादा है इन द स्पेशली इन द पैसिफिक रीजन, राइट। सो सरकम पैसिफिक बेल्ट हम देखेंगे फोटोज में, ठीक है। एंड फिफ्थ रीजन जो है अर्थक्वेक का वो है ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे आप बोल सकते हो, जैसे माइनिंग हो सकता है, लार्ज स्केल पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शंस अगर होगा, आर्टिफिशियल लेक्स अगर बनाएंगे, रिजर्वॉयर्स, ऑयल रिजर्वॉयर बनाते हैं मिट्टी के नीचे, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं लोग। सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक्स, ठीक है। इससे क्या होता है, टिपिकल यू कैन से टिपिकली माइनर अर्थक्वेक्स और ट्रेमर्स आते हैं, शेकिंग होता है। The pressure offered by the column of water in a large and deep artificial lake alters stresses along the fault lines or fracture. Percolation of water weakens the soil structure and lubricates the fault. ठीक है। कैसे होता है देखिए आप, पर्कुलेशन ऑफ वाटर कैसे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल लेक्स जब बनाते हैं लोग तो क्या होता है, सपोज मान लीजिए ये पहले से थोड़ा क्रैक है इसमें, ठीक है, तो फॉल्ट लाइन है यहाँ पे, जैसे उन्होंने कुछ एक्टिविटी किया जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हुआ, दे हैव कम इन कॉन्टेक्ट विद द फॉल्ट लाइन, तो यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी यूजुअली हार्ड होने से अच्छा है, नहीं तो ये क्रैक होते जाएगा, राइट। सो इसमें जब आर्टिफिशियल लेक या कुछ ऐसे सोर्सेस होंगे इसके ऊपर, और ये अगर मतलब पानी क्या हुआ, पर्कुलेट करेगा, पर्कुलेट मतलब नीचे जाएगा, तो यहाँ पे अगर आ गया तो आसपास के जो जमीन है वो क्या होगा, इट विल बिकम वीक, लूज हो जाएगा, तो ये क्या होगा, और जल्दी धस जाएगा अंदर, राइट। इससे क्या होगा, आपका फ्रिक्शन भी होगा एट द सेम टाइम, इसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है, ओके। सो फॉल्ट को ल्यूब्रिकेट करते हैं ये वाटर पर्कुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल लेक्स, और आर्टिफिशियल लेक कौन बनाता है, हम ही बनाते हैं। देन रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी है, अभी आप देख सकते हो, जैसे लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ वाटर कैन सिग्निफिकेंटली चेंज द स्ट्रेस। दिस सिग्निफिकेंट change in the stress can lead to sudden movement along the fault or fracture resulting in an earthquake, ठीक है। जैसे वाटर का लोडिंग एंड अनलोडिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, वही सेम चीज़ स्ट्रेस में जो होता है या फॉल्ट लाइन जो होता है, इसमें स्ट्रेस आता है, इसके वजह से क्या हो सकता है, देयर कैन बी फर्दर फ्रैक्चर, और यू कैन से ल्यूब्रिकेशन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से अर्थक्वेक आने का चांस बढ़ जाता है। जैसे जैसे इफ़ यू सी, महाराष्ट्र में एक डैम है विच इज़ नोन एज कोयना डैम, कोयना डैम जो है रिजर्वायर महाराष्ट्र में है। सो यहाँ पे क्या हुआ था, 1967 में कोयना नगर जो अर्थक्वेक है उसमें आप देखोगे तो नियरली 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वाई? बिकॉज वहाँ पे एक 6.3 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था, जो डैम टूट गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, रिजर्वॉयर आसपास के एरिया में ये पूरा पानी फैल गया, ठीक है। सो देयर हैव बीन सेवरल अर्थक्वेक ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड सिंस देन। फिर ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड तब से हो रहा है, मतलब अर्थक्वेक आ ही रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ये क्यों हो रहा था, बिकॉज जब ये पानी लीक हो गया, आपको पता है कि अगर वहाँ पे अर्थक्वेक जोन है और वैसे डैम बनाया बड़ा, इसलिए आप देखिए कहीं पे अगर वो जोन है, अर्थक्वेक जोन है, यूजुअली वहाँ पे डैम्स नहीं बनाते हैं। वाई? पहली चीज़ तो अगर डैम टूट गया अर्थक्वेक की वजह से तो आसपास के एरिया में पूरा पानी हो जाएगा, राइट, फ्लड्स आ जाएंगे, आर्टिफिशियल फ्लड। और दूसरा रीज़न है, अगर वो पानी अगर उस जोन में अर्थक्वेक का कोई फॉल्ट या फ्रैक्चर है, ठीक है, मतलब फॉल्ट लाइन है या कोई फ्रैक्चर क्रैक है उसमें, सो वो पानी जब नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, ये फॉल्ट और फ्रैक्चर लाइन का जो ये जो बाउंड्री था ना, मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया था, सपोज मान लो ये वाला एक फॉल्ट लाइन है, तो यहाँ पे अगर कुछ डैम टूट गया तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर विल बी लीकिंग इनटू द अर्थ, राइट, पर्कुलेट करेगा, फिर आसपास के मिट्टी में क्या होगा, यहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा धंसने लगेगा, राइट, फास्ट। फिर सब्सिडेंस बोलते हैं, सब्सिडेंस मतलब ये धंस जाएगा, राइट। सो इसकी वजह से भी क्या होगा, अर्थक्वेक और ज़्यादा आएगा। 2008 की बात है, सिचुआन जो अर्थक्वेक था आपका, ठीक है, चाइना में, इसमें करीब 68,000 लोगों की डेथ हुई थी। इट्स अनदर एग्जाम्पल, राइट।
सो अर्थक्वेक क्या होता है, रिजर्वॉयर इंड्यूस सिस्मिसिटी की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। और इट इज बिलीव्ड दैट कंस्ट्रक्शन एंड फिलिंग ऑफ द, देखिए जिपिंग पू डैम था। सो कंस्ट्रक्शन एंड फिलिंग मतलब क्या है, वहाँ पे बनाया डैम को, ठीक है, एक पर्टिकुलर मान लीजिए एक एरिया है, उसमें जैसे पहले से एक फॉल्ट लाइन है, लोगों को पता नहीं है, राइट, इसलिए प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह करके डैम्स बनाने चाहिए। यहाँ पे उन्होंने डैम बना दिया, ठीक है। सो डैम बनाने के टाइम पे क्या हुआ, दे हैव लाइक, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज था अंडरग्राउंड, ठीक है, फिर हैवी यहाँ पे पानी वगैरह रखा। तो ये पानी जो है डैम का थोड़ा थोड़ा तो नीचे लीक होता ही रहेगा ना, जितना भी आप जमा कीजिए, ठीक है, रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है मान लीजिए इस डायरेक्शन पे, तो डैम ने ब्लॉक कर दिया रिवर को, तो पानी कुछ ना कुछ तो नीचे जाता रहेगा ना। सो ऐसे अगर फॉल्ट लाइन इसके नीचे आ गया तो क्या होगा, देयर इज हाई चांस कि ये पानी पर्कुलेट करेगा और आसपास की जो ज़मीन है इट विल बिकम लूज, लूज होने की वजह से क्या हो गया, ये सबसिडेंस या धंस जाएगा अंदर, ठीक है। सो इसकी वजह से यू कैन से लाइक ऑलमोस्ट 68,000 लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। सो दिस आर सम द रीजंस, ये क्यों हुआ था एक्चुअली, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम। ये डैम बनाया गया, फिर ये माटी धंस गया, फिर इसकी वजह से क्या हुआ, ऑलमोस्ट 68,000 पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइफ, बोथ डैम ब्रेक होने की वजह से एज वेल एज यहाँ पे अर्थक्वेक भी बहुत आया, सो घर भी टूटा, ठीक है, पानी भी आया, एंड देयर वाज अ ह्यूज कैटास्ट्रोफी इन चाइना। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थक्वेक्स बेस्ड ऑन फोकस, ठीक है। अगर हम फोकस को याद करते हैं, फोकस मतलब हाइपोसेंटर जो होता है अर्थक्वेक, जहाँ पे ओरिजिनेट होता है, ठीक है, बिलो द अर्थ क्रस्ट और इन द अपर, यू कैन से, जो आपके हमने देखा था जो क्रस्ट है, क्रस्ट में भी हो सकता है, या आपके जो अपर मेंटल होता है, ठीक है। सो दोनों में अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे हो रहा है उसके हिसाब से अगर देखेंगे, ठीक है, फोकस का ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, उसका डेप्थ कितना है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, तीन टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स को डिफाइन करते हैं। अगर आपका फोकस जो है जहाँ पे वो अर्थक्वेक मतलब 30 के नीचे हो रहा है, अगर 0 to 70 किलोमीटर डेप्थ के अंदर हो रहा है देन इट इज नोन एज शैलो फोकस। अगर 70 से 300 किलोमीटर के अंदर डेप्थ में हो रहा है देन दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट फोकस। और अगर डीप फोकस है, मतलब डीप अर्थक्वेक है, फोकस अगर बहुत अंदर है, मान लीजिए अपर मेंटल में आ गया, ठीक है, स्टेनोस्फीयर के नीचे आ गया, वहां पे अगर ओरिजिनेट होता है अर्थक्वेक देन दैट इज नोन एज डीप अर्थक्वेक्स। ओके, सो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। फिर एक पर्टिकुलर हम जोन के बारे में पढ़ेंगे, सबडक्शन जोन है, उसका नाम है वाडिटी बेनियोफ जोन। एक साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है ये वाडिटी बेनियोफ जोन। क्या है देखिए, वाडिटी बेनियोफ जोन इज ए जोन ऑफ सबडक्शन, ठीक है, along which earthquakes are common। अभी हम जो बोल रहे थे ना आपको, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा था आपको, हमने फॉल्ट लाइंस दिखाया था, ठीक है, जोन ऑफ सबडक्शन भी होता है, फॉल्ट लाइन मतलब इमेजिनरी लाइन होगा, और ये एंटायर एरिया को जोन ऑफ सबडक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, द अर्थक्वेक्स ओकर अलोंग दिस जोन। ओके, सो और मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक हमने देखा था, अगर वो कन्वर्जन बाउंड्री है तब वहाँ पे और ज़्यादा मैग्नीट्यूड का या पावरफुल अर्थक्वेक्स आता है। Differential motions along the zone produces numerous earthquakes, the foci of which may be as deep as 700 kilometers, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, वो शैलो फोकस हो सकता है, डीप फोकस हो सकता है, उसके हिसाब से इंटरमीडिएट फोकस भी हो सकता है, उसके हिसाब से क्या होता है अर्थक्वेक का जो होता है मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, ठीक है। अभी अगर देखेंगे वेरिटी मेनी ऑफ जोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्लिप अलोंग द सबडक्शन थ्रस्ट फॉल्ट। जैसे अब हिमालयन रीजन में अगर देखेंगे, हम हिमालयन रीजन मैंने बोला था आपका क्या है, यहाँ पे इंडियन प्लेट जो है आपके यूरेशियन प्लेट के ऊपर मतलब इंडियन प्लेट नीचे जा रहे हैं, वाई बिकॉज इट इज हेवियर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका हिमालयन रीजन में एक सबडक्शन थ्रस्ट फॉल्ट बन गया है, राइट। और वो किस टाइप का है, कन्वर्जन बाउंड्री है, सो इसलिए यहाँ पे अर्थक्वेक डेंजरस, मतलब बड़े बड़े अर्थक्वेक आने का बहुत चांस ज़्यादा होता है, बिकॉज इट्स इन द कन्वर्जेंस बाउंड्री या सीसी बाउंड्री बोलते हैं, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर देखेंगे स्लिप ऑन फॉल्ट विद इन द डाउनगोइंग प्लेट, यहाँ पे क्या होगा, आपका ओशनिक ओशनिक या कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जन बाउंड्री। सो बाउंड्री अगर आप कन्वर्जन बाउंड्री भी देखेंगे, ठीक है, ये तीन टाइप के हो सकते हैं, मतलब अगर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के बीच हुआ एक टाइप हो गया, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस बाउंड्री बोलते हैं। अगर ओशन ओशन के बीच हो गया, ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस बाउंड्री बोलेंगे। अगर कॉन्टिनेंट ओशन के बीच हुआ तो उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंट ओशनिक कन्वर्जन बाउंड्री, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कैसा होता है, देखिए अर्थक्वेक इस रीजन में यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या नीचे भी हो सकता है। ये डीप फोकस हो गया नीचे वाला, राइट। बीच वाला हो तो इंटरमीडिएट फोकस हो गया। ऊपर अगर हुआ क्रस्ट के वेरी क्लोज हो गया देन दिस इज शैलो फोकस, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो दिस इज द लिथोस्फीयर, ओसेनिक लिथोस्फीयर, मतलब लिथोस्फीयर तो आपको पता ही है, लिथोस्फीयर अगर देखेंगे क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट
और अपर मेंटल और एस्टेनोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर बीच में आएगा, एस्थेनोस्फीयर और अपर मेंटल, इन तीनों को मिला के हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, राइट। तो इसलिए लिथोस्फीयर में क्या क्या आएगा आपका, जो ओशनिक लिथोस्फीयर है एंड दिस इज द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंटल प्लेट। सो जो ओशनिक प्लेट है अगर वो क्या है, हेवियर है, आपको पता है वो क्या होगा, इट विल सबसाइड, नीचे चला जाएगा, राइट। और जो आपके कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है वो उसके नीचे चला जाता है। तो इसके वजह से क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे इस पार्ट में क्या हो गया, एक पार्ट सबसाइड हो गया ना, तो यहाँ पे यूजुअली ट्रेंचेस बनते हैं, ठीक है। ट्रेंच मतलब डीपेस्ट पॉइंट आप बोल सकते हो, यहाँ पे बहुत डेप्थ में होता है ये, ठीक है। और ये जब प्लेट, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, आई मीन कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर ओशनिक प्लेट जा रहा है तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर जोन बनता है, राइट। दिस जोन इज नोन एज द वेरिटी बेनियफ जोन, मतलब ये लिथोस्फीयर धीरे धीरे धंसते जा रहा है अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। सो दिस पर्टिकुलर जोन इज नोन एज द वेरिटी बेनियफ जोन, और इसी में ही अर्थक्वेक्स आते हैं। तो अगर वो ऊपर वाले ही रीजन में होगा, सो ये पूरे रीजन को ही बोलते हैं वेरिटी बेनियफ जोन, जहाँ पे अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, राइट। और ये अगर ऊपर हुआ तो ये शेलो हो गया, इंटरमीडिएट हो गया बीच में, और डेप डीप अर्थक्वेक्स कहाँ पे होता है, डीप फोकस अर्थक्वेक वो नीचे होगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार एपीएससी सीसी में आया था, मेंस में 2023 वाला जो हुआ 2024 में जुलाई में, उसमें एक क्वेश्चन आया था अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक्स, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था GS1 का। सो यहाँ पे अगर देखेंगे मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स आपको पता है देयर इन द मार्जिन्स ऑफ द ओशनिक, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट का बाउंड्री होता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर अर्थक्वेक्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है, वॉल्केनिज्म भी ज़्यादा होता है। अभी अर्थक्वेक बेल्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वी हैव द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, और सर्कम पैसिफिक बेल्ट में अगर देखेंगे स्पेशली जो पैसिफिक ओशन में है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं जहाँ पे ये सारे अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म बहुत ज़्यादा होता है, जैसे न्यूजीलैंड के पास है, न्यू गिनी है, जापान है, एलुशियन आइलैंड्स है, अलास्का है, एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट हैं, ठीक है। सो जस्ट आप देख लीजिए, जैसे ये अमेरिका है सपोज मान लीजिए, राइट, ये सेंट्रल अमेरिका है। सो ये साउथ अमेरिका है जैसे, और ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। कनाडा को मिला के, यूएस को मिला के नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, बाकी सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। सो दोनों कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। इसके जो वेस्टर्न पार्ट है ना, इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, अर्थक्वेक एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटीज होते हैं। फिर सिस्मिक एक्टिविटी जो होता है इस बाय नो फॉल्ट, बाय नो मीन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बेल्ट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम है, ऑलमोस्ट मोटामोटी सब जगह में ही आते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट में, ठीक है। एंड देयर आर मेनी ब्रांचेस एट डिफरेंट पॉइंट्स। और ये जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, यहाँ पे अर्थक्वेक के साथ क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी होते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, एक रिंग की तरह दिखता है वो, ठीक है। देखिए रिंग हम लोग जो पहनते हैं उंगली में, सो ये एक रिंग व अंगूठी जो होता है उसकी तरह दिखता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ए रिंग ऑफ फायर, ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ यहाँ पे प्लेट्स, क्योंकि ये प्लेट बाउंड्री है, प्लेट कन्वर्जेंस बाउंड्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी कुछ ऐसे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस वगैरह होगा, ठीक है, या ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है बाउंड्री प्लेट्स में, तो क्या होगा, देयर इज ए हाई चांस कि वहाँ पे अर्थक्वेक होगा और आसपास वॉल्केनिज्म भी दिखाई देता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली छोटे छोटे आइलैंड्स है, पैसिफिक आइलैंड्स, यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज और अर्थक्वेक एक्टिविटी दिखाई देता है, ठीक है। सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं उसके 68% जो होता है ना, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही आता है। फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक बेल्ट हो गया आपका, ठीक है, लोकेशन में अगर देखा जाए। दूसरा और एक बेल्ट है विच इज नोन एज द एल्पाइन बेल्ट, जो जिसमें हम हैं अभी असम, ठीक है, इट कम्स इन द हिमालयन बेल्ट और द एल्पाइन बेल्ट। दिस इज द सेकंड मोस्ट आप बोल सकते हो जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। फिर अभी अगर देखा जाए द एनर्जी रिलीज इन द अर्थक्वेक्स फ्रॉम दिस बेल्ट इज ऑलमोस्ट 15% ऑफ द टोटल वर्ल्ड। सो जितना एनर्जी अगर आप जस्ट एस्टिमेट कीजिए, पूरे वर्ल्ड में अगर अर्थक्वेक्स को मिला के 100% हम पकड़ते हैं एनर्जी रिलीज होता है हर एक अर्थक्वेक से, ठीक है, मिला के। अगर हिमालयन एल्पाइन बेल्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है, मतलब एल्प्स और एप्स जो माउंटेन रेंज है और हिमालयन माउंटेन रेंज, इनको मिला के एल्पाइन बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे टोटल 15% ऑफ द टोटल एनर्जी रिलीज होता है, ओके, बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक्स। फिर द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट दैट इज एल्पाइन बेल्ट एक्सटेंड्स पैरेलल टू द इक्वेटर। वो कहाँ से शुरू होता है, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, मैक्सिको से शुरू होगा इन द अटलांटिक ओशन। मेडिटेरेनियन ओशन जो है उसको कवर, मेडिटेरेनियन सी जो है उसको कवर करता है फ्रॉम द एल्पाइन काउकासस रेंज टू द कैस्पियन माउंटेन्स, ठीक है। ये मैप पे आप लोग देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बड़ा जगह है, ये हम मैप पे देखेंगे, है एक मैप, ठीक है।
यहाँ पे देखेंगे। सो ये जो बड़ा एरिया है दिस इज द एल्पाइन बेल्ट। फिर अगर देखोगे देयर आर ऑल्सो स्ट्राइकिंग कनेक्टेड बेल्ट्स ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी अलोंग द ओशनिक रीजस इंक्लूडिंग दोज इन द आर्कटिक ओशन में भी है कुछ, ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी छोटा मोटा कुछ है, वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में है, वेस्टर्न इंडियन ओशन में है, ठीक है, एंड अलोंग द रिफ वैलीज ऑफ ईस्ट अफ्रीका। तो थोड़ा मैप पे देख लेते हैं। सो ये देखिए, ये जो मेजर अर्थक्वेक्स है आप देख सकते हो, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, पैसिफिक ओशन में हो रहा है, राइट। सो इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे मैप में तो इट विल लुक लाइक ए रिंग ऑफ फायर, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट बेल्ट। दूसरा जो बेल्ट है ये यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट, ये वाले जो बेल्ट है। सो इनफैक्ट यहाँ से आप बोल सकते हो, यहाँ से बेल्ट ऐसे होता है, राइट, ये इधर भी कवर होगा ये वाला एरिया, यहाँ तक आप मान सकते हो दिस इज द एल्पाइन बेल्ट, ठीक है। इसमें काउकाशियन माउंटेन्स, मैक्सिको, बहुत सारी जगह आ जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो एल्पाइन या हिमालयन जो बेल्ट है या एप्स एरिया भी आते हैं इसमें। मिड, इसलिए इसको मिड वर्ल्ड ओशनिक बेल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए इट एक्सटेंड्स फ्रॉम इक्वेटर, फ्रॉम माने इक्वेटर से आप देखोगे तो मैक्सिको कवर करता है, मेडिटेरेनियन ओशन और कैस्पियन से लेके आपका हिमालयन माउंटेन्स एंड एडजॉइनिंग लेंस, मतलब ये कंप्लीट जो एरिया मैंने अभी मैप में दिखाया ये वाला मिड ओशनिक, इसको रेंज भी बोलते हैं या एल्पाइन रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें काउकाशिया, मतलब यहाँ पे यूरोपियन जो काउकाशस है, हिमालयस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हिमालयस है। सो ये सारी इसमें आ जाते हैं। और बाकी जो है दूसरा मेजर बेल्ट है वो क्या है, दिस इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशन में है, राइट, दिस पार्ट। इसको कंप्लीट कर सकते हो आप ऐसे ड्रॉ करके मैप की इस तरफ ले जाओ, ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड मैप है तो ऐसे आप लिंक कर सकते हो। सो दिस इज नोन एज द पैसिफिक। और मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज अगर देखेंगे इज इन दिस लाइन, राइट। देखिए कितने सारे वॉल्केनोज यहाँ पे लाइन में, राइट, यहाँ पे देखिए कितने सारे वॉल्केनोज है। और ब्लैक वाली जो है दिस आर वॉल्केनोज ऑफ मैग्नीट्यूड 9 एंड अबोव। देखिए कितना, मतलब जस्ट इमेजिन, राइट। सो दिस इज इट। सो आज यही वीडियो था आपका लेक्चर। सो वॉल्केनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, देन वी हैड स्टडीड अबाउट वॉल्केनिक एक्टिविटीज। और आज हमने क्या देखा, वी हैड सीन द डिफरेंट फीचर्स ऑफ वॉल्केनोज, ठीक है। फिर कॉजेस ऑफ वॉल्केनोज हमने देखा। हमने क्या क्या देखा पहले से मैं बताता हूँ। अर्थक्वेक्स के बारे में देखा, क्या हम इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ा। फोकस एंड एपिसेंटर के बारे में हमने डिस्कस किया। देन वी हैड टॉक्ड अबाउट द फोर शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स। फिर हमने स्वार्म्स क्या है वो देखा। कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक जो है उसको डिटेल में हमने समझा। चार कॉजेस हैं मेनली, एक फॉल्ट जोन की वजह से होता है, प्लेट टेक्टोनिक और वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये तीनों क्या है, नेचुरल है। एंड एंथ्रोपोजेनिक जो है वो है ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक। तो हमने एक एक करके समझा। पहले फॉल्ट जोन समझे हमने, then we had seen the plate tectonics, then we had seen the volcanic activities and finally human induced earthquake जो होता है, और रिजर्वॉयर बनाने की वजह से भी कुछ ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक या सिस्मिक फीचर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। देन वी हैड सीन अबाउट द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द फोकस, जैसे शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप अर्थक्वेक्स होते हैं। देन एक पर्टिकुलर जोन है विच इज नोन एज द वारेटी बेनियोफ जोन, वो हमने पढ़ा। देन और हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो बेसिकली दो मेन बेल्ट है, एक है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और दूसरा क्या है आपका एल्पाइन बेल्ट, ठीक है। सो एल्पाइन बेल्ट को क्या बोलते हैं आपका, मिड ओशनिक या सॉरी मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। वॉल्केनिज्म थोड़ा बचा है, कुछ वॉल्केनिक फीचर्स हमको देखना है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव फीचर्स है। सो विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।